So, good evening to all of you, and warm welcome on Ahmedabad, behalf of Ahmedabad Management Association and the President. So, uh, you might be knowing the subject today has been giving a very interesting and mindfulness intervention at the workplace. Everybody is busy during the workplace. Everybody is busy during your office hours. Everybody is busy during the time of your family lives and studies and educations and going traveling anywhere. But unless and until if you have dawned, your mind is not peaceful or mind is not working in the proper directions, you have some problems. And that we have our a wonderful speaker today who is going to inspire us for this wonderful evening and giving his thought process. I will give you some brief introductions to Anurag ji. So Anurag ji is a behavior coach and trainer, workplace psychologist, meditation coach, inspirational speaker, and HRD management consultant. With an experience of over 23 years experience in the banking and FMCG and sourced in the hospitality, manufacturing of engineering products, educational, including 9 years in the training. He has been associated in organizations like Citibank, GE, Grasim, Ahmedabad Management Association, Kotak Mahindra Bank, Future Group, HDFC Bank, L&T Finance, Reliance, Glaxo, Hindustan Liver, and few more companies which has been not a long list of this client's name. Anurag is also a visiting faculty at ICAI and LJ Law College. Anurag specializes in coaching and consulting on the leadership, change management, negotiation, communications, visible and subtle, problem solving, creative and critical thinking, self-appraisal, stress management through meditations and more. Training for the teenagers, students and parenting the workshop and teachers, training with the art of living are also area where the Anurag adds value through the training and group personal counseling. Also a meditation coach and Bhagavad Gita in management and trainer and facilitator. Anurag loves to call himself the work-life flows. वो खुद अपने को एक वर्क प्लेस का साधु वर्किंग साधु समझते हैं तो वो शब्द के लिए मॉन्ग के लिए एक बिग राउंड ऑफ एप्लॉज टू अनुराग जी बिकॉज नोबडी इज़ रेडी टू से कि मैं आज अपनी जगह पे जहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरे अंदर एक साधु तत्व है तो वो एक बहुत बड़ी बात है जो अपने को कहना चाहता है और अपने को समझ में आ सकता है अनुराग हैज़ ए यूट्यूब चैनल यूट्यूब ऑब्लिक अनुराग मेहता with more than 100 videos is there in the YouTube. You can, of course, whenever you have a leisure time or a substantial time at the time, you go to the Anurag Mehta Tube, YouTube, so you will learn more about the spiritual lives. He is an author also in the motivational book, Life is a Fully Paid Holidays. The wonderful book he has written. If you have a time and if you have a note of that, you can give you the availabilities and where you can get it. It's a wonderful book to read in your life. Being an avid traveler, Anurag has visited more than 175 cities in India and having a lot of collections, lot of wisdom and lot of appraisals in their life for the motivationals and training and the spiritual life speaking. So not giving you the more words and I will give the more time to Anurag. On behalf of Ahmedabad Management Association, I again warm welcome to all of you and also to Anurag Mehta and with the, offering a bouquet of flower and memento on behalf of MA. Floor is yours, Anurag ji, you can have. आपको यहाँ दिक्कत ना हो क्योंकि लाइट ऑन रहेगी हाँ दे दो ना पहले मैं ये यूज़ कर लेता हूँ बाद में कर दूँगा थोड़ी देर ऐसे रहने दो थोड़ी देर इसको बंद कर देता मैं उठा लूँगा इसको So thank you Deepak ji, thank you so much for the warm welcome and introduction. I think मुझे अभी पता चला दीपक जी हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं
काफ़ी सारे लोग हैं, 150 से ऊपर लोग हैं, तो सबको तो मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट बिकॉज ही इज़ देयर टुडे वी केम टू नो दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मैंने कहा यार इतने टाइम से जानते हैं, और बिकॉज इन दैट ग्रुप आई हैव हार्डली मेट एनीवन, इट्स ऑल ऑनलाइन। जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड, वी स्टार्टेड दिस ग्रुप एंड वी डिड अ लॉट ऑफ मेडिटेशंस, बट I would say unfortunately I don't know most of the people. I've never met them except few जिनको मैं personally जानता हूँ. So he's one of them. So it is a pleasure to be introduced by you. So thank you so much, and thank you AMA as always. AMA is family, AMA is temple. I've been connected with AMA for such a long time. 2012 में मेरा पहला लेक्चर हुआ था फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू स्पिरिचुअलिटी, और वो ऐसे ही भरा हुआ सा रूम था और बहुत बढ़िया सा लेक्चर हुआ था। और तब से फिर बाद में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। कल भी है मेरा ट्रेनिंग, फुल डे ट्रेनिंग है ऑन लीडरशिप। सो ये सब तो चलता रहता है, बट दिस इज समथिंग विच इज़ अ प्रिविलेज ऑल द टाइम फ्रॉम AMA. सो कवर ऑफ थिंग्स, माइंडफुलनेस एट द वर्क प्लेस, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को हम कनेक्ट करते हैं. सो आई कीप इट इन हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? ગુજરાતી મને આવડતી નથી, બહુ બધું કોમેડી થઈ જાય, એટલે આઈ વિલ સ્પીક ઇન હિન્દી એન્ડ ગુજરાતી. સો આઈ હોપ દેટ ઇઝ ઓકે. सो माइंडफुलनेस, यू नो, माइंडफुलनेस को हम लोग मेडिटेशन के साथ कनेक्ट करते हैं. एंड मेडिटेशन का नाम आता है तो ये कपड़े थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं. ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है. मैंने किसी को बताया कॉर्पोरेट में मैं मेडिटेशन कोच हूँ, तो लोग ऐसे देखते हैं. मतलब बताना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन के लिए आपको भगवे कपड़े पहनने पड़ेंगे या कुर्ता पहनना पड़ेगा. इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन एज दिस ड्रेस, वट एवर इट इज़, एंड दिस इज़ द वे, एंड दिस इज़ द होल पर्पस, एंड दिस इज़ द होल मिशन आई एम वर्किंग ऑन, टू टेक मेडिटेशन टू एवरी होम. बट बिकॉज आई वर्क विद सो मेनी कॉर्पोरेट्स, एज सर ने बताया, आई वर्क विद कोटक बैंक एज अ ब्रांच मैनेजर. उससे पहले मैं सिटी बैंक में काम किया. आई सीन द प्रेशर, आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रेशर एज एन एम्प्लॉई. और प्रेशर किसको बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर. मैंने एग्जैक्टली वो चीज़ देखी है अपने लाइफ में. और बाद में भी अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इतने सालों से, एंड आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड दे हैव बीन सेइंग दिस, दैट देयर इज़ प्रेशर, देयर इज़ प्रेशर. बोलते हैं आपका बढ़िया है सर, आप तो निकल लिए. आप निकलो, कौन पकड़ के कौन रखा है आपको? किसी ने पकड़ के नहीं रखा आपको, आप ही ने पकड़ के रखा है. सो वेल, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट yeah, so that thing is there. But then the point is I want to remove pressure. Now these stress management or inspirational lectures which I also gave, I know and you know that the longevity of these things is not more than 2-3 days. आप चाहे शिव खेड़ा को सुन लीजिए या संदीप महेश्वरी को सुन लीजिए, जिन दोनों को मैंने पर्सनली भी सुना है और उनका फ़ैन भी हूँ, वो असर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है. उस टाइम तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है बस मैं दुनिया बदल दूंगा. And third day you're on the same track, you are in a different zone, back onto the same zone. So I was always wondering क्या कर सकते हैं, because one thing I don't like is कि 3 वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान स्ट्रेस ले, तो ये भगवान का अपमान है. जानवर भी स्ट्रेस नहीं लेता है खाना खाने के लिए, उसको भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स एक्सेट्रा नहीं होते हैं. और हम इंसान जो इतना इवॉल्व्ड स्पीशीज़ हैं, we stress because of earning money, because we have to earn money. You know, that is not right. This is not right. This is not good. And मेरे हिसाब से इसमें चेंज आना बहुत ज़रूरी है. This is where it started कि कोई तो ऐसा ऑर्गेनिक सस्टेनेबल मेथड होगा जो हम ऐसा दिखा सकें, बता सकें, समझा सकें, प्रैक्टिस करवा सकें, so that we can take meditation, so that we can offer a solution to people for a long-term sustainable stress-free life, in which the work is also there. तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने बताया, वर्क प्लेस मॉन्क, कर्म योगी, वो कर्म योगी जो कॉन्सेप्ट है वो गीता का आखिरी जो श्लोक है 18.78, उसमें जो बोल रहे हैं भगवान के, या संजय जो बोल रहा है कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ विजय है, वहाँ प्रोस्पेरिटी है. सिंपल भाषा में समझे तो ऐसा है. अब जहाँ कृष्ण है, जहाँ विजय है, तो लोग क्या समझते हैं, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय तो होनी है, तो कृष्ण की बात हो रही है. जबकि उसके अंदर ऐसा बोल रहे हैं कि जहाँ अर्जुन है, यानी जहाँ स्किल है, अर्जुन कोई नहीं है, जहाँ स्किल है, जहाँ एबिलिटी है, जहाँ कुछ कर पाने की क्षमता है, और जहाँ कृष्ण जैसी बुद्धि है, समझ है, एक साधुवाद भी है, और ऐसा एक माइंडसेट भी है, एक डिटैचमेंट का माइंडसेट कि हम काम कर रहे हैं लेकिन कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं है, पर काम पे फोकस है. जो हमारे बाबा ने बोला, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, वो इसका मॉडर्न वर्जन है गीता का. तो वो जो चीज़ है, वो वाला कॉन्सेप्ट के साथ हम काम करें,
और काम ऐसा करें जिसमें हमको लगे इससे बढ़िया मैं नहीं कर सकता था। ये कर्मयोगी है। ये 18.78 जो है वो ये है, जिसमें कृष्ण भी नहीं है, अर्जुन भी नहीं है। दे आर मेटाफॉर्स, दे आर जस्ट सिंबल्स ऑफ व्हाट वेद व्यास वांटेड टू से थ्रू दैट। तो वो कर्मयोगी का कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मन में एक शांति आने के लिए वी नीड मेडिटेशन. सो दैट इज हाउ इट गोज. सो विल गो ahead. So stress, we see a lot of stress at the workplace. So WHO says that negativity at the workplace is the biggest occupational stress or biggest occupational problem, और सही वर्ड्स हो तो ग्लोबल ऑक्यूपेशनल हेल्थ इशू. नेगेटिविटी साइकोलॉजिकल इशू है ये. स्ट्रेस जो हम देखते हैं काम में, जो हमको लगता है नॉर्मल है, ये तो होना ही चाहिए. कोई स्ट्रेस में नहीं होगा तो उसका बॉस बोलेगा तू आज खुश क्यों है इतना, वाई सो हैप्पी, दिस इज नॉट राइट, कुछ तो गलत है, तू छोड़ने वाला क्या नौकरी, इतना खुश क्यों घूम रहा है. Why do that? Why think like that? Why can I not be happy at the workplace? Who says I cannot be happy at the workplace? So that is one area. But then, yeah, stress is considered to be very normal, right? Second is work-life spillover. Spillover क्या है? Workplace घर पे आ रहा है और घर का टेंशन ऑफिस में जा रहा है. ये spillover जो है, that is again one major issue. So I'm doing my PhD on the topic impact of meditation on emotional intelligence. एंड कहीं ना कहीं ये जो ये है, ये तो एक ही स्लाइड है, इसमें तो स्लाइड्स बहुत हो सकती हैं, बट द फैक्ट इज़ दैट देर इज़ सो मच डेटा, पर समय उतना नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा ही एक स्लाइड में ही 4 ही पॉइंट्स लेके आया हूँ, और ये 4 पॉइंट्स समराइज करते हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस को. एंड ये जो भी पॉइंट्स हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं. द थर्ड इज जॉब स्ट्रेस इज अ ह्यूज इमोशनल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट टू द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन. इस पर समझाने लायक कुछ है नहीं, बताने लायक कुछ है नहीं. टू द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए इट्स अ ह्यूज स्ट्रेस, रीजन ऑफ स्ट्रेस. एंड अर्जेंट नीड फॉर मेच्योर लीडरशिप, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल लीडरशिप, जिसके ऊपर मेरे लेक्चर्स होते ही हैं. और मैं यही बोलता हूँ कि स्पिरिचुअल लीडरशिप डजंट मीन आप बैठ के माला लेके मेडिटेशन करो एम्प्लॉयज़ के साथ. इट इज़ दैट फीलिंग ऑफ गिविंग आउट टू द एम्प्लॉय, टू केयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, and in that everything is taken care of, right? So ye stress hai, we know stress to be there, and I think we all agree that there is stress in the workplace. So main thoda sa something karta rehta hu, because I think that will be better. One second. center mein karu. So can you hear me all? Yeah. So ये जो है ये वर्क प्लेस का एक कॉन्सेप्ट है कि वर्क प्लेस में इतना स्ट्रेस है, इतनी नेगेटिविटी है, और ये गलत है. मेरे हिसाब से ये गलत है, ये ठीक नहीं है, इस तरह से जीवन नहीं जीना है. पर क्या करें? आपके लिए तो बोलना आसान है सर, करें क्या? तो पैसा भी कमाना है, काम भी करना है. काम नहीं करने का एक कारण ये हो जाता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को रिपोर्ट करना पसंद नहीं करता है. Nobody wants to report to anybody. ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है कि मेरे को रिपोर्ट नहीं करना है. मैं क्यों किसी अनजान आदमी से अप्रूवल लूँ अलग अलग तरह के? कोई अनजान आदमी क्यों अप्रूव करे मुझे साल के एंड में कि तुमने साल में काम कैसा किया और फिर तुमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम अच्छे से हुआ कि नहीं, तुम्हारा नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा. कोई तीसरा आदमी क्यों बोले कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है, आज बारिश बहुत बढ़िया है, मौसम अच्छा है, आज मेरे को एंजॉय करना है, मैं काम कर लूँगा, मैं रात को काम कर लूँगा, नंबर ऑफ आवर्स को छोड़ो, मेरा काम हो जाएगा. वो वाला माइंडसेट नहीं है. मुझे आधे घंटे भी ऑफिस से बाहर जाना है तो पूछना पड़ता है, आई डोंट लाइक दिस बट आई नो दिस इज द वे इट इज. तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट समथिंग इनसाइड मी इज नॉट रियली लाइकिंग इट. तो दैट इज वन रीजन ऑफ स्ट्रेस विच कम्स अप, राइट. जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ऐसे ही है भैया, उनके लिए तो आज कुआं खोदा और आज पानी निकाला, वैसा वाला केस है. कहीं ना कहीं दे आर सिटिंग एट अ पॉइंट वेयर दे आर नॉट वेरी श्योर वेयर दे गोइंग विद इट. काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, चल गया, बट वी ऑल नो 90% ऑफ बिजनेसेस फेल इन द फर्स्ट 5 years. दैट्स अ ग्लोबल स्टडी, राइट. तो ये करना आसान नहीं है ना. हम तो बोल रहे हैं करेंगे, पर इतना आसान होता तो नौकरी कौन करता, राइट. सब बिजनेस करते. तो ये स्ट्रेस है. दिस इज द होल बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रेस इन विच वी ऑल लिव. या सो गोइंग अहेड, माइंडफुलनेस मेडिटेशन. So mindfulness meditation is basically mindfulness. Mindfulness इसके ऊपर हम आएंगे, बट और हम मेडिटेशन भी करेंगे. बट माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है? इज अ प्रोसेस टू ब्रिंग द अटेंशन इन द प्रेजेंट मोमेंट while being completely focused on the activity.
क्यों प्रेजेंट मोमेंट? बिकॉज हमारा दिमाग अदरवाइज घूमता रहता है, कहीं ना कहीं घूम रहा है, एवरी टाइम इट इज समवेयर द अदर, पास्ट एंड फ्यूचर। हमको तो ऐसी टेंशन हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टेंशन हो जाएगी, अरे मेरा लैपटॉप गुम हो गया तो क्या होगा, अभी टेंशन है बेकार में। आई एम जस्ट थिंकिंग, अरे मेरा लैपटॉप गुम हो गया तो क्या हो गया, अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो, आई कीप थिंकिंग दिस काइंड ऑफ weird thoughts and I get really engrossed in them and they really overpower me while there is no logic in that, but I start thinking ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, this is something in the future। पास्ट में कहीं कुछ इवेंट्स होंगे जो अगर बहुत बढ़िया पास्ट नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ एस्टीम इशू भी रहेगा, और सेल्फ एस्टीम अगर अच्छा नहीं होगा तो आगे को लेके भी नेगेटिविटी होगी। सो ऑल ऑफ दिस इज पास्ट एंड फ्यूचर, हार्डली आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड माइंडफुलनेस ऐसा बोल रही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहोगे, एंड दैट इज द होल पॉइंट। सो ये अलग अलग मेडिटेशंस हैं, योग निद्रा है, शवासन है, विपश्यना है, सुदर्शन क्रिया है, काय उत्सर्ग है, संभवी है सदगुरु जी की, ज़ेन मेडिटेशन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस हैं, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, अभी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मेडिटेशन अंग्रेजों ने नाम रखा है शवासन का, बेसिकली वही है, हमारी वाली मेडिटेशन ही लेके गए हैं बाहर। और ट्रांसजेंटल अपना ऋषि महेश योगी की मेडिटेशन है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, हार्टफुलनेस मेडिटेशन शायद आपने सुना होगा, यहीं पे अहमदाबाद में भी उनका बहुत बड़ा बेस है, काफ़ी एकर्स में फैला हुआ है, सो दे ऑल्सो नो मी वेरी वेल। फॉरगिवनेस मेडिटेशन etc etc, so these are all mindfulness meditations which are there, and of course there are more meditations also, right? So this is where you are into the concept of meditation, mindfulness meditation। तो हमारा टॉपिक क्या है, mindful intervention और mindfulness intervention at the workplace। intervention क्या है, ये एक एक्टिविटी है जो हम कॉर्पोरेट में कराएं। अब मेरा जो PhD चल रहा है, और why honestly why I am having this lecture, why I asked AMA to have allow me to give this lecture is that I want to reach out to people and tell them कि meditation तो हम कर सकते हैं, और इसका किसी भी धर्म से, किसी भी रिचुअल से लेना देना नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली सेक्युलर, इट इज़ मी, माई माइंड, माई बॉडी, माई सोल, उसके अलावा कुछ होता है ही नहीं, और हम कितनी सिंपली कर सकते हैं। और ये जो हमारे मन में धारणा है कि मेडिटेशन किया है होता नहीं है, थॉट्स रुकते नहीं है एक्सेट्रा, सो that is something that I want to get you off। this is a myth, this is not real। भले आपने किया होगा, भले नहीं हुआ होगा, तो भी मैं बोल रहा हूँ ये myth है, ये real नहीं है, and that is one thing। second is I am saying can we take meditation as a daily practice। आप बोलोगे डेली क्या करेंगे सर, बैठते हैं सुबह, होता ही नहीं है, 4 बार ट्राई किया, 6 बार ट्राई किया, doesn't happen, we have tried it etc, सो अभी छोड़ दिया है, करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, या किसी और ने ट्राई किया और नहीं होता है उससे, और हमने सोचा हमसे भी नहीं होगा, हमने भी 1-2 बार ट्राई किया, डिडंट वर्क द वे वी वांटेड। बट द प्रॉब्लम इन दिस इज वी वांटेड अ पर्टिकुलर रिजल्ट आउट ऑफ मेडिटेशन, वी वांटेड अ रिजल्ट। आज बैठे हैं, मन में थोड़ा तनाव है, तनाव खत्म हो जाए, ऐसा देखा है लोगों को, बहुत ही आहा मूवमेंट में चले जाते हैं, एक अलग ही जोन में चले जाते हैं, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे तो थॉट्स ही नहीं रुक रहे, उल्टे टेंशन बढ़ गई। So then I don't want to try meditation, and that is the whole fallacy in the process, in the thought process. How we can include that, how we can include mindfulness in our daily life is what I would say is my mission। Honestly, this is the only thing I'm left with। बाकी तो ठीक है, कमाना है पैसा etc, but I want to be known, it's not an ego statement, but I want to be known in India कि ये अनुराग मेहता जो है ये हर जगह ऑफिस में मेडिटेशन लेके गया, and that is the mission I have, and that is what I'm working on, my PhD is working on that, and जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मैं यही बातें कर रहा हूँ, भैया मेडिटेशन को अपनाओ यार, मेडिटेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। इसलिए हम आज भी मेडिटेशन करेंगे। तो ये कुछ एक ज़रा सा प्रोसेस है कि कोविड इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो इनसिक्योरिटीज़ जो भी हमने देखा, कोविड में सबको बहुत प्रेशर आया, मुझे भी आया, सबको ही थे, डिफ़िकल्टी थी। सेकेंड इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ऑफिस में। थर्ड इज इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर क्या होता है भाई? इमोशनल लेबर ये होता है कि आपको किसी ने डांट दिया फिर भी आपको हंसते रहना है। कस्टमर आया बैंक में, चिल्ला के चला गया, यस सर, नो नो सर सर ये जो है ये इमोशनल लेबर है, जहाँ अंदर से मैं जल रहा हूँ लेकिन बाहर से मुझे खुश रहना है। एयर हॉस्टेस, पता है क्या मतलब चल रहा है और कई आदमी लोग किस तरह से उनको देख रहे हैं, पर फिर भी ये सर करना है। और उसी तरह से और भी कितना कुछ है काम में जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे वो बॉस है चाहे वो मेरा कस्टमर है। आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द वे आई बीन। हाँ जी भाई, वो देखो ना चेयर्स का कुछ देख लो पीछे। सो आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द होल प्रोसेस, बट देन I just have to smile, so that is emotional labor. And the fourth one is workplace aggression, चाहे वो physical हो चाहे वो verbal हो, all of this is a part of work pressure.
let them settle, just let's wait for a minute. हाँ, आगे आ जाइए, आगे की सीट्स खाली हैं. मेरे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में जो सबसे पीछे बैठे होते हैं, उनको आगे बिठाई देता हूँ. तो आगे आओ, आगे की दुनिया में बढ़िया है. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस. बैक बेंचर अपनी जगह है, पर आगे दुनिया में अलग ही मजा है. पर यहाँ तो आपको मौका ये मिला है, सो यू कैन कम एंड सिट हियर. ऑल राइट. चलिए, सो विल कंटिन्यू. सो वर्क प्रेशर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, राइट. स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? डिमोटिवेशन हो रहा है, एट्रिशन, लोग छोड़ के जा रहे हैं. वर्क प्लेस डेविएंस, विच इज पीपल आर ऑफिस में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक पे चले गए, गॉसिप कर लिया. ऑल ऑफ दैट इज वर्क प्लेस डेविएंस, वे आर गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम योर वर्क एट योर वर्क प्लेस एंड प्रोडक्टिविटी इश्यूज देयरफॉर. सो ऑल ऑफ दीज फोर, ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं, मैंने 4 ही पकड़े हैं. तो ये जो एरियाज हैं, दीज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस. एंड देयरफॉर बिकॉज देयर आर प्रोडक्टिविटी इश्यूज, इसको मैंने और जानबूझ के अलग से रखा है. आप ये देखिएगा, ये बैटरी को देखना ऊपर, मोबाइल वाला बैटरी भी है, जस्ट कीप अ लुक एट दैट, राइट. तो व्हेन वी डू मेडिटेशन इंटरवेंशन, व्हेन वी डू इट फॉर 20 मिनट्स अ डे, और मेरा रिसर्च तो 7 दिनों का चल रहा है. इच्छा थी महीना 2 महीना करने की, पर 7 दिन के लिए भी लोग बड़ी मुश्किल से मिले ऑनेस्टली, तो 7 दिन का चल रहा है. पर 7 days ऑल्सो वी ब्रॉट इन सम अमेजिंग रिजल्ट्स, रियली गुड रिजल्ट्स, विच आई विल शेयर विद यू, right. So what happens then is there is a lot of emotional intelligence, and there are 5 areas in emotional intelligence. First is self awareness. So self awareness क्या है? Self awareness ये है, भाई गुस्से से पहले 10 तक गिनना था. किसी ने बोला था 10 तक गिनो, गुस्सा नहीं आएगा. गुस्सा करने के बाद याद आया, यार 10 तक गिनना था, वो तो भूल ही गए. तो 2-4 बार के बाद छोड़ देते हैं, बोले ये ऐसी प्रैक्टिस होगी, ये तो होता नहीं है ऐसे, 10 तक गिनना कहाँ होगा. But if you can see, if you can put a spotlight on your emotion in that moment, it will dissolve, right. तो ये सेल्फ अवेयरनेस है. जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं, these are given by Daniel Goleman, who is an expert in emotional intelligence across the world. तो मैंने जो थ्योरी लिया वो इनका लिया है. So first one is self awareness, that you are aware, somehow you are aware that this emotion is coming up inside me. एंगर हो, वरी हो, एंग्जाइटी हो, एक्साइटमेंट हो, हैप्पीनेस हो. एक्साइटमेंट कौन सा अच्छा चीज़ है? जब आप एक्साइटमेंट होते हैं तो कई बार आप गलत डिसीजन ले लेते हैं. समटाइम्स यू डू समथिंग रॉन्ग ऑल्सो, राइट. इवन दैट व्हेन यू सी, यू सोवर अप, यू स्लो डाउन, राइट. दैट अब आपने जब अवेयरनेस डाल दिया, स्पॉटलाइट डाल दिया, तो सेकंड जो है वो है मैनेजिंग इमोशंस, विच कैन ऑल्सो बी सेड मैनिपुलेटिंग इमोशंस टू सम एक्सटेंट. समटाइम्स आपने वो मैनेज कर लिया इमोशंस का उस टाइम पे. अगर आपने उस टाइम पे मैनेज कर लिया तो आपके एक्शन जो निकलेगा वो बहुत कंट्रोल निकलेगा. वो जब हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? थर्ड, विच इज मोटिवेटिंग वन सेल्फ. अब अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं यार इमोशनली स्ट्रांग रहो, एंड लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है, आई एम एबल टू एटलीस्ट लुक एट एंड एट सम लेवल अंडरस्टैंड कि ये इमोशंस को मुझे रोकना है एंड मैनिपुलेट करना है, एंड आई एम एबल टू कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ, राइट. द फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट इज एम्पैथी. एम्पैथी क्या होता है? कोई बता पाएगा? व्हाट इज एम्पैथी? यूजुअली आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वन वे दिस थिंग, बट आई थिंक इतने बड़े ऑडियंस में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आई विल स्टिल आस्क व्हाट इज एम्पैथी. एम्पैथी क्या होता है? एनीवन? एग्जैक्टली, व्हेन वी पुट आवरसेल्व्स इन अदर पर्सन शूज. सो एम्पैथी के उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, अच्छा अब तू देख, अरे बाबा रुको यार, यू नो दिस पर्सन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, उसने ऐसा नहीं बोला होगा. Yeah, that person might be not in the best of state of mind. Wait, think. That wait is self-awareness. That second is somehow manipulating emotions, managing emotions. In that, when you're able to see empathy, you're not able to, react. You're able to respond. You're able to empathize कि यार उसको दुख होगा, यार वो परेशान है, या वो आज बहुत खुश है, क्या मैं उसको और खुश कर सकता हूँ, या वो परेशान है मैं उसको और खुश कर सकता हूँ. वॉट एवर बी द इमोशन ऑफ द अदर पर्सन, वॉट एवर इज द स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ ओवरऑल मे बी फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस या ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन, when I am able to see life from the other person's point of view, that is empathy, right. अगर एम्पैथी हो गई, अगर सच में ह्यूमन लेवल पे एम्पैथी हो गई, तो फिर तो क्या बचा? सोशल स्किल्स अच्छे हो नहीं, right. I did my master's in psychology specializing in organizational behavior, and my dissertation happened in conflict management. conflict management में एक चीज़ मुझे dissertation करते हुए, रिसर्च करते हुए समझ में आई, वो थी ये चीज़ एम्पैथी,
कि अगर आप एम्पैथी रख पाए लोगों के साथ, अगर एम्पैथी आ जाती है, अगर सहानुभूति आ जाती है, तो दुनिया बहुत सुंदर जगह हो जाएगी। क्योंकि लड़ाई की जगह मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाऊंगा, बिकॉज कोई भी इंसान उसमें से गीता पढ़ेंगे तो ईश्वर ही तो है ना। देव भी मैं हूं, दानव भी मैं हूं, विराट रूप में बोला। अब देव भी मैं हूं, दानव भी मैं हूं, तो भाई उसमें से ईश्वर एक तरीके से प्रकट हो रहा है। अगर वो देखना मुझे आ गया, एम्पैथी का लेवल वो आ गया, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ रहेगा। एंड इन पांचों को हम ऐड करेंगे तो कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज सपोज टू बी, राइट। मुश्किल है, आई नो दैट, प्रवचन देना इजी है, मुश्किल है। मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को ट्राई किया है, कुछ हद तक आगे बढ़ा हूँ, अभी भी बढ़ रहा हूँ, बट आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस दैट बिकॉज आई हैव सीन सक्सेस इन ऑल ऑफ दिस, आई एम प्रीटी मच कन्विंस्ड इन व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ, राइट। सो इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला कि प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा, प्रवचन तो शिव खेरा भी दे देगा, कोई भी दे देगा, बट देन बियॉन्ड दैट यू हैव टू गो एंड सी हाउ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट फॉर यू। दुनिया को ज्ञान न दिया जाए, मेरे को काम आ रहा है, मेरे को हेल्प हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड प्रॉब्ली दैट इज अ टाइम यू कैन गो आउट एंड टॉक टू पीपल अबाउट इट, राइट। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, वो पांचों एरियाज होते हैं, तो दो चीज, पहला बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉइज विच इज जॉब सेटिस्फैक्शन, इमोशनल रेगुलेशन, ये एम्प्लॉय का है, मोटिवेटिंग वन सेल्फ, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, एंड सो बेटर टीम वर्क, एंड बेनिफिट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अगर एम्प्लॉयज इतने बढ़िया हो गए तो बेनिफिट्स तो है ही, बट स्टिल आई रीड आउट, सो हायर प्रोडक्टिविटी, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, लॉट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी हैपनिंग, बिकॉज अब एम्प्लॉय खुश है, और क्रिएटिविटी तो मेरा नेचुरल फीचर है, तो क्रिएटिविटी तो अपने आप आ जाएगा, बिकॉज आई एम क्रिएटिव बाय नेचर, एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम क्रिएटिव। A spider is not creative. Millions of years it is making the same web without improvisation. I need to improvise every time. I need to change. I need to add on. That is my virtue. I need to improvise. I need to innovate. I need to be creative. I need to do something or the other better. मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मेरे को लगता है इसको अलग कैसे कर सकता हूँ, इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ, that is me. पर जब काम ही नहीं कर रहा और जबरदस्ती काम कर रहा है, तो बेटर क्या, जितना हो जाए उतना ही काफी, right? But when I am settled inside, then I want to do better. As a human being, I want to do better, and that's why we were able to come from pager to whatever gadget we have today, right? And we're going to go much far with that, and so many other things, where we have come from stone age to here that we live in this society, right? Because we wanted to improve, वो नोकिया का 6610 आया था, मेरे एज वाले लोग जानते होंगे, उसमें स्नेक का एक गेम होता था और कुछ नहीं था उस फोन में, इतना सा वो होता था स्क्रीन, है ना। उस फोन से आज का फोन कितना अलग है, टेक्निकली बात ही करनी है, हो जाती है, वो भी काफ़ी था, ये भी है, लेकिन ऑफ कोर्स हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एंड टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी टॉकिंग ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, वी टॉकिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड इन सब चीज़ों का आज हम जानते हैं चीज़ें। इसके ऊपर भी एक्चुअली कुछ साल पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, ऐसे ओपन लेक्चर था। आई टॉक्ड अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द 21st सेंचुरी, एंड दे आर एंडलेस। हम नहीं सोच सकते उतनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, तो ये बढ़ रहा है और बेटर और बेटर और बेटर, राइट। सो इनोवेशन है, लेस एट्रिशन, बिकॉज लोग खुश हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे, एंड एक पॉजिटिव वर्क कल्चर। व्हेन दीज टू थिंग्स आर एडेड, व्हाट वी गेट इज इंक्रीज प्रॉफिट्स। So what I am trying to tell management, what I am trying to tell HR people, what I am trying to tell a lot of other people is that when you include meditation as a part of your work routine, you end up getting organizational profits. एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्क रूटीन में से एम्प्लॉय का 20 मिनट निकालना बहुत ही पेन होता है। 20 मिनट वेस्ट हो जाएगा, पता नहीं जैसे कोई क्या ही कर लेता है 20 मिनट में कोई, लेकिन ठीक है वो सही है अपनी जगह। But I am saying that 20 minutes is an investment. You spend that 20 minutes and you get a lot of things post that. You get a lot of advantage after that, because this is where you are leading to increased profits. हम जापान की बातें करते रहेंगे बस, पर अपनी जगह नहीं करेंगे। जापान में ब्रेक लेते हैं, 7.5 मिनट सोते हैं, दिस दैट, व्हाट्सएप पे ऑफलेट फोटोज भी भेज रहे हैं हम लोग, वो सब सही है। अपने टाइम पे नहीं भैया तुम टाइम मत वेस्ट करो, हमको लगता है ये लोग कुछ करेंगे ही नहीं, बट देयर नीड्स एक्चुअली सही भी है, बिकॉज एक प्रॉपर इंटरवेंशन चाहिए। बिना प्रॉपर इंटरवेंशन के वो चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल टीचिंग योगा, देयर आर सो मेनी पीपल टीचिंग मेडिटेशन, एंड नथिंग इज रियली गेटिंग आउट ऑफ दैट. So that is something which is a problem, which is a real concern of organizations and managements. But somehow if this can be inculcated, simple mindfulness meditation, which as I said we'll do right now after some time, वो अगर समझ में आ जाती है मेरे को,
तो कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैंने मेडिटेशन कर लिया होगा. Nobody will even know. That's what I call on the go meditation. या भी रिसेंटली हमको हमारे ग्रुप में से किसी ने नाम दिया ATM, परसों ही दिया ATM, एनी टाइम मेडिटेशन. ब्यूटीफुल नेम. मेरे को लगा यार ये बढ़िया, आई विल नाउ ऑनवर्ड्स यूज दिस एनी टाइम मेडिटेशन. सो दैट्स व्हाट वी विल डू एंड नोबडी विल नो अबाउट इट. विल टॉक अबाउट दैट. ओके, सो देयर इज सम रिसर्च दैट हैज हैपेंड एंड जो हम लोगों ने करी है उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दिखाना चाहता हूँ. ये सेल्फ अवेयरनेस का जो हमने बात किया, जस्ट 7 days ऑफ मेडिटेशन वी गॉट अ 5.7% increase in self awareness levels. In second, we got managing emotions, we got 10%, almost 11% increase in the scores, in mean scores of more than 100 employees. I presented this paper at IIM, so there I showed all these details. Third is empathy. Empathy में 6.39% increase in just 7 days of meditation, mind you that, right? Fourth is I think आप में से कई सारे लोग, if I can remember some faces, were a part of my meditation, if I am not wrong. मॉर्निंग मेडिटेशन हमने ऑफिस में जाके किया था. जमीन भाई, आई थिंक यू वुड अग्री, अपने ऑफिस के लोग आगे होंगे यहाँ पे ना, काफ़ी सारे होंगे. कैन वी रेज योर हैंड्स? या यस, राइट. सो यू आर अ पार्ट, वी हैड डन दिस मेडिटेशन. एक हफ्ता हमने जाके मेडिटेशन कराई थी. सो दैट इज देयर. सो मोटिवेटिंग वन सेल्फ इज 5.5% इंक्रीज एंड सोशल स्किल्स यू गॉट 7% इंक्रीज. 7 दिन, only 7 days, 20 minutes a day, that's it, and this is the score. And if you apply it in your life, if you do it daily, हमने तो रेगुलर मेडिटेशन किया था, पर अभी there are other ways of meditation I have applied also. अगर वो हो जाता है तो आप सोचिए क्या मजा आएगा, कितना मजा आएगा, right? So and lastly finally जो हमारा consolidated score है उसमें 7.54% increase है in overall emotional intelligence of more than 100 people, employees, only employees, in only and only 7 days of 20-minute meditation. Can you figure that out? Can you see it? What I want to do is, I want to go to organizations and tell them, यार अब तो statistical data भी है, अब क्यों meditation को accept नहीं करोगे? अब तो खाली खाली बातें नहीं है, अब तो real data है. Now why don't you want to accept meditation? So that's all the purpose of my PhD is. Anyways, we'll go forward. Now we'll come to a very important point. मेडिटेशन वर्सेस माइंडफुलनेस. सो मेडिटेशन, जो हमने जितनी भी सारी मेडिटेशंस के नाम देखे थे, वो एक मेडिटेशन है जिसको हम ध्यान बोलते हैं पतंजलि के अष्टांग योग में. जो 7वां योग है, अष्टांग अंग है, उसके बाद समाधि है, उससे पहले धारण है, उससे पहले जो है 5 है, मतलब उससे पहले आसन, प्राणायाम, उससे पहले यम नियम, वो सब है, मेरे को सीक्वेंस ठीक से याद नहीं है, बट लास्ट में धारण, ध्यान और समाधि है. तो हम जो बात कर रहे हैं मेडिटेशन, वो हम ध्यान की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि आप ऐसे एक धुन में चले गए, आप you went into a zone for 15-20 minutes, you were literally there. And this is what I want to advise to you, that when you are doing your meditation, don't set a goal to that. पहला चीज, there is no goal for meditation, right? When there is no goal for meditation, the only thing that you are there is you are letting go. जब तक आप let go नहीं करेंगे, आपसे meditation नहीं होगा. ऐसे सोना है, नींद आई है, आपको लेट गो करना पड़ेगा. आप सोचिए मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए. आपको पता है कई बार होता है, लेट हो रहा है, सुबह जल्दी उठना है, बस नींद आ जाए, बस 4 घंटे भी नींद आ जाए, तब तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी, है ना. कोशिश करके नींद कभी नहीं आएगी. आप जब सरेंडर कर दोगे नींद आएगी. सिमिलरली मेडिटेशन, जब आप सरेंडर कर दोगे, अपने आप को सरेंडर कर दोगे, देन यू विल मेडिटेट. तो बेनिफिट जो है वो तो हमने देखे, और ऑफ कोर्स हम तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स व्हिच आई विल टॉक इन द एंड. सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. हम इंडियंस को कौन बताएगा यार मेडिटेशन का बेनिफिट, पर बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, पर मेडिटेशन कर नहीं रहा है कोई. अंग्रेज लोग हमारे मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके पेटेंट भी बना रहे हैं उठा के. इंडियंस को पेटेंट सिखा रहे हैं वो लोग, पर फैक्ट है ना, हम कर नहीं रहे तो वो करेगा. हम अगर वेद नहीं देख रहे तो वो पढ़ेगा वेद. हम अगर शास्त्र नहीं, पुराण नहीं देख रहे तो वो पढ़ेगा. कोई तो करेगा ना. चीज तो बढ़िया है, कोई तो आएगा क्यूरियोसिटी के साथ, क्वेश्चन पूछेगा, यार मेरे को लाइफ में आंसर चाहिए, मेरी फिलॉसफी मुझे नहीं दे रही है. सुना है ईस्टर्न फिलॉसफी में इंडिया में बहुत अच्छा ज्ञान है, देखूं ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, चलो मैं वहाँ सिखाऊंगा अपने लोगों को. अच्छा है ना. पर वहाँ जाके कोई बोल रहा है भाई मेरे को इसका पेटेंट भी चाहिए, वो ग्रीड है. पर जो भी है, इफ ही इज गेटिंग दैट एंड इन अ वे ही डिजर्व्स दैट, बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग आवर वेदास, वी आर नॉट रीडिंग पुराण, वी आर नॉट रीडिंग वेदांत. वेदांत तो पढ़ सकते हैं, वेद तो बहुत मुश्किल है. So if we are able to accept Vedanta as a part of life, I think we are sorted. Ajay bhai,
चेयर थोड़ा देखना पड़ेगा, हाँ आगे आ जाओ ना, 3 है, 3 तो है, देयर आर 3 चेयर्स एटलीस्ट, आइए आइए राइट. सो दैट इज वेयर दिस थिंग इज गोइंग. सो मेडिटेशन इज एक्चुअली क्लोजिंग योर आइज एंड सेटलिंग डाउन, राइट. माइंडफुलनेस क्या है? ये शिव की तीसरी आंख है. कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका? शिव की तीसरी आंख का क्या मतलब है? शिव की तीसरी आंख को गुस्से से दिखाया गया है खाली, उसका मतलब वहीं से जरा सा ट्विस्ट है. गुस्सा नहीं है, कामदेव को जलाना नहीं है, प्रलय नहीं है, तांडव नहीं है. शिव की तीसरी आंख कुछ और है. कोई बता सकता है माइंडफुलनेस और तीसरी आंख का क्या क्या रिलेशन है? एनीबडी, इफ यू कैन गिव मी सम इनसाइट कि शिव की तीसरी आंख और माइंडफुलनेस का क्या रिलेशन है? ओके, वी कैन कंसिडर इंट्यूशन, ठीक है ठीक है. और तो माइंड पर जब कंसंट्रेट करेगी तो वो अवेयरनेस की जो हम बात कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस. मुझे जब गुस्सा आ रहा है मैं उसको देख रहा हूं, मेरी अंदर की आंख उसको देख रही है, वो है तीसरी आंख. वो गुस्से से जलाना करना लोगों ने बनाया भक्तजनों को काबू में रखने के लिए, ऐसी स्टोरीज बना दी, ऐसा नहीं है. तीसरी आंख शिव है. शिव को क्या गुस्सा आएगा? शिव है वो तो, राइट. उसको तीसरी आंख है जो उसको बोल रही है, जो उसको दिखा रही है कि तुझे गुस्सा आ रहा है. जो मेरे को जब गुस्सा आ रहा है मैं देख रहा हूं, मेरे अंदर एक सिस्टम है, वो यहां बनाया है, पर एक चीज है मेरे अंदर, क्योंकि दिमाग के पास रखना था, यहां तो मतलब नहीं था तो यहां लगा दिया. द पॉइंट वाज दिस, दैट समहाउ आई एम एबल टू सी माय इमोशनल आउटबर्स्ट. चेयर है, यहां पे बैठ सकते हैं. सो I am able to see my emotional outburst. I am able to see I am getting emotionally expressive, which may not be the right thing to do, right. That is the third eye and that is mindfulness. हम उस mindfulness की बात कर रहे हैं. हम meditation की बात कर रहे हैं. meditation की तो मैं meditation coach, मेरे videos हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में. But we are talking of mindfulness right now because meditation ऑफिस में corporate accept नहीं करेगा, ये मुझे समझ में आ गया है. वो नहीं करेगा, कुछ ही कर लो वो नहीं करेगा. आगे आ जाओ, आगे सीट्स खाली हैं, राइट. तो वो तो है ही, पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई मेडिटेशन हो सकता है कि हम अपने आप कर ले और किसी को पता ही ना चले और रिजल्ट और अच्छा आ जाए उससे. कितना कमाल का चीज होगा वो. एंड अभी एज ऑफ नाउ आई थोड़ा बहुत जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इनफॉर्मल रिसर्च है, अदर देन माई PhD. मैं देख रहा हूँ कि मैं इनफॉर्मल मेडिटेशन, माइंडफुलनेस करवा रहा हूं और मैं रिजल्ट्स को स्टेटिस्टिकली पॉजिटिव देख रहा हूं. आई कैन सी दैट इन 1 राउंड ऑफ माइंडफुल एग्जिस्टेंस आई कैन सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन जस्ट 1 राउंड. आई टेल यू, हम जब करेंगे मैं आपको बताऊंगा, राइट. तो ये क्या है? ये फोटो दिख रही है और अपने आप इसमें अपने आप पे सब कुछ है. आई थिंक इट इज टोटली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एक बार आप देख भी लीजिए. तो बेसिकली ये क्या है? ये माइंडफुल है या माइंडफुल है? हमारा नॉर्मली ये वाला स्टेट रहता है, माइंडफुल है. फुल है जी, जगह ही नहीं है जी, फुल है. हाँ देखिए अगर ये जगह होगी और क्रिएटिविटी और ये ह्यूमन एबिलिटीज है उसको हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो FOOL ही हो जाएगा. बिकॉज मेरे अंदर क्या है एज अ ह्यूमन? मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, मेरे अंदर इमेजिनेशन है. इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी आर द फेवरेट वर्ड्स ऑफ आइंस्टाइन. और बहुत लोग आइंस्टाइन को जानते हैं लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया है वो नहीं जानते हैं. उस जमाने में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 और 1915, जब कोई गैजेट नहीं था, ब्लैक बोर्ड और वाइट चौक के साथ और अपने दिमाग के साथ, जिसमें उसको मैथ बहुत अच्छा लगता था, उसने स्पीड ऑफ लाइट डिस्कवर की थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. और उसने साथ में ये प्रिडिक्ट किया था कि अगर कुछ उससे ज़्यादा गया तो टाइम में बैक ट्रैवल कर लेगा. और जो इसके ऊपर इंटरस्टेलर मूवी बनी, अगर आपने देखी हो तो, 1905 1915 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे लेके आया वो. एंड ही ऑलवेज सेड आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट मैडली क्यूरियस. और दूसरा उसका फेवरेट वर्ड था इमेजिनेशन, राइट.
imagination and curiosity are my virtues. As any human being, these are my virtues. And if I can use imagination and creativity, I can do so many things out there, right? ये हो गया. उसके बाद आपके अंदर गोल सेटिंग का ability है, आपके अंदर let's say मनन चिंतन, इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, राइट, इसको मैं कर सकता हूँ. मेरे मन में आता है क्यूरियोसिटी के साथ कि ये चांद उस दिन पूरा था, आज आधा क्यों है, ये भोजन जो अंदर जाता है इसका होता क्या है, अंदर हो क्या रहा है, मेरा दिमाग काम कैसे कर रहा है. ऐसी क्यूरियोसिटी से भरी हुए क्वेश्चंस जिसमें मनन चिंतन करके एंड ऑफ कोर्स साइंटिफिक रिसर्च करके हमने माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप तक सब कुछ बनाया, राइट. दैट इज समथिंग आई वाज एबल टू डू बिकॉज आई हैड सम ह्यूमन एबिलिटीज. तो आपने जो माइंडफुल बोला वो बिल्कुल सही बोला कि अगर माइंड ही फुल होगा तो वो जगह जो मेरी बेसिक ह्यूमन वर्च्यूज हैं उनको मैं यूज़ कैसे करूँगा. सो दैट इज़ वन एरिया वेयर आई यू नो गो मैड. तो यहाँ पे मैं आपको मेरा चैनल दिखाना चाहता हूँ. आई गॉट, मैंने ऑन करके रखा है. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं जस्ट एक तो ये ऑन द गो एफर्टलेस मेडिटेशन है, दूसरा CCTV मेडिटेशन है. विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. एक ये आया नहीं था. और वर्क प्लेस मेडिटेशन है, जिनको वर्क प्लेस, ये फॉर्मल मेडिटेशन है. और ये वाला जो है ये ध्यान है. इसमें अलग अलग तरह की मेडिटेशन है, 114 वीडियोज़ हैं. मैं खाली आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ, इसको भी पूरा नहीं दिखेंगे, थोड़ा लंबा है, बट आई वांट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. तुम्हारे एक उंगली, मेरे पास एक मेडिटेशन ऐसा है जो मैंने 11 साल में डेवलप किया है, जो हमारे शास्त्रों में वैसे भी हमेशा से लिखा था, लेकिन उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको. आर यू एबल टू हियर इन द एंड? सुन रहे हैं आपको? और वो ऐसा मेडिटेशन है जो आप करते करते, ऑन द गो मेडिटेशन आई कॉल इट. आप उसको चलते चलते कर सकते हैं, आप काम करते कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन करते हुए कर सकते हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, पानी पीते हुए कर सकते हैं, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, एनीथिंग दैट यू डूइंग, आप वो करते करते इस तरह से बैठे बगैर शांति से, जैसे आप ज़िंदगी जी रहे हैं वैसा जीते जीते मेडिटेशन कर सकते हैं. और बेनिफिट्स वही सारे मिलेंगे जो एक्चुअल में मेडिटेशन के मिलते हैं. सो मेडिटेशन के बेनिफिट्स हमको पता है, स्पेशली हम इंडियंस हैं, हमको 100% पता है. आजकल तो बाहर भी सबको पता है मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स हैं. सो स्ट्रेस रिलीफ है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, पीस ऑफ माइंड है, एंग्जाइटी है, इम्यूनिटी का बेटरमेंट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट की वजह से बेटर डिसीजन मेकिंग है, गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, देयरफॉर लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम डूइंग माई PhD ऑन द टॉपिक मेडिटेशन एंड इट्स बेनिफिट्स ऑन इमोशन. ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, बहुत लंबा नहीं जाएंगे बिकॉज काफ़ी सारी बातें तो मैंने बोली. Guys, I want to talk to you about meditation because probably that's the only thing left in my life right now. मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे हैं, मुझे भी हो रहे हैं, और जब मुझे हो रहे हैं तो मुझे लगता है मैं ही अकेला क्यों एंजॉय करूँ. Why not share it with people around me? And that's what I'm trying to do right now. मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं. मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मेरे पास टाइम नहीं है. फॉर दोज पीपल पर्टिकुलरली आई वांट टू टेल यू, या मैंने मेडिटेशन ट्राई किया था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. सो दीज 3 काइंड ऑफ कैटेगरीज आई वांट टू टेल यू. मेडिटेशन करने के लिए किसी पर्टिकुलर तरीके से बैठना, किसी पर्टिकुलर समय पे करना ज़रूरी नहीं है. लोग बोलते हैं मेडिटेशन खाने से आधा पौना घंटा पहले आगे बाद में नहीं करना चाहिए. मैं बोलता हूँ मेडिटेशन खाते वक्त भी हो सकता है. Meditation is about mindfulness. Mindfulness means being in the present moment. If you are in the present moment, you are meditating. इसीलिए मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान. आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, आपका दिमाग कहीं भी नहीं जा रहा है, आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं. सो किसने बोला मेडिटेशन नहीं होता है? किसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है? चलिए, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. पहली बात तो वीडियोस हैं और मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, बिकॉज ये दोनों वीडियोस देखा आपने कुर्ते वुर्ते में बाल वाल कहीं जा रहे हैं, वैसे लॉकडाउन के समय का है. लॉकडाउन में बोलने की आदत है, ट्रेनर हूँ, कोई मौका ही नहीं है, सब बंद है. लॉकडाउन में पूरा ही बिजनेस बंद था, तो सोचा चलो क्या करें, यूट्यूब के वीडियो बना लेते. वो एक मुँह से तो कुछ निकलना ही है ना, कुछ तो निकलेगा. तो वो वीडियो के उसमें आ गया, तो बहुत सारे वीडियो बन गए. उसमें बहुत सारे मेडिटेशन की वीडियोस हैं, भगवत गीता की वीडियोस हैं, वर्क प्लेस साइकोलॉजी की वीडियोस हैं. आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को देखें, तो इसमें आपको बहुत कुछ बेनिफिशियल मिलेगा. मैं यहाँ पे 2 तरीके की बात कर रहा हूँ. एक बात कर रहा हूँ ये जो माइंडफुलनेस वाले वीडियोस हैं जो 2 दिखाए, और दूसरा है मेडिटेशन.
तो हम एक काम करते हैं, मेडिटेशन करें फटाफट 5 मिनट वाला, उससे लंबा नहीं करेंगे, और फिर हम माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन करेंगे। सो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, सीधे होकर बैठ जाइए ऑल ऑफ यू, कमर सीधी, हो सके तो कुर्सी का सपोर्ट ना लें। आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए। शरीर को हिलाएंगे नहीं 5 से 8 मिनट। अपने जीवित होने के एहसास को महसूस कीजिए। आर यू अलाइव राइट नाउ? शवासन का कॉन्सेप्ट यह है कि आप शव की तरह लेट जाएं और देखें कि आप जीवित हैं, क्योंकि शव और आप में कोई फर्क नहीं है, या फर्क है? क्योंकि शव भी वैसा ही लेटा है, आप भी वैसे ही लेटे हैं। हाउ आर यू श्योर दैट यू आर अलाइव? वही श्योरिटी इस वक्त हमको चाहिए। कहाँ से वो फीलिंग आती है, कौन सी वो फीलिंग है, क्या वो एहसास है, उसको पकड़ने की कोशिश करें। दैट आई एम अलाइव राइट नाउ, मैं इस वक्त जीवित हूँ। शरीर हिल नहीं रहा है, आंखें बंद हैं, पर मुझे पता है कि मैं जीवित हूँ। इंसान के जीवन का एकमात्र गोल अपने जीवित होने के एहसास को पहचान लेना। क्या मेरे शरीर में राइट हैंड है? डू आई हैव अ राइट हैंड? क्या ये राइट हैंड का अंगूठा टेनिस बॉल जैसा है, बड़ा और गोल? क्या पहली उंगली मेटल की बनी है? क्या दूसरी उंगली का नाखून 1 फुट लंबा है? क्या तीसरी उंगली रबड़ की है? चौथी उंगली तो है ही नहीं कि है? क्या मैंने अपने लेफ्ट हैंड में बर्फ का टुकड़ा पकड़ा है, बड़ा सा? क्या मेरी लेफ्ट कलाई पर किसी ने रस्सी बांधी है, या मैंने घड़ी पहनी है, या कुछ चूड़ी पहनी है, या कुछ नहीं पहना है? Do I have a left foot in my body? राइट फुट का अंगूठा 6 इंच लंबा है? क्या राइट फुट कोयले की गर्म चादर पे पड़ा है? इन आंसर्स को मैं कैसे जानता हूं? हम नॉलेज को रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज को रेफर करेंगे तो ये एक्सरसाइज का मतलब ही नहीं है। क्या वो एहसास है मेरे अंदर कि आंखें बंद हैं, शरीर हिल नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दोनों कंधों पर किसी ने हाथ नहीं रखा है। कि मेरे पेट के बीच में एक ही नेवल है, 4 नहीं है। कि मेरे रीढ़ की हड्डी गोल या स्क्वायर नहीं, स्ट्रेट रॉड है। क्या वो एहसास है जो मुझे ये बता रहा है कि मेरी गर्दन 2 फुट लंबी नहीं है? कि मेरे मुंह में दांत हैं? क्या मैं सांस ले रहा हूं? Am I sure that I am breathing? क्या सांस को अंदर जाते बाहर आते नॉस्ट्रिल्स को टच करते हुए महसूस कर रहा हूं मैं? Can I feel the presence of air? Can I feel the flow of air touching the inner walls of my nostrils? Can I also feel कि अंदर जाती हुई हवा थोड़ी सी ठंडी है, बाहर आती हुई हवा जरा सी गर्म है?
Can I feel the temperature difference in both of them? क्या मैं अपने सिर पे हेलमेट पहना हूं? इन सब के उत्तर मुझे किस तरह पता है? What is it inside me that tells the answers to these things? How do I know that I am alive right now? मैं इस वक्त जिंदा हूं कि मैं जानता हूं कैसे, किस तरह मैं जानता हूं कि मैं इस वक्त जीवित हूं? ये एहसास तभी तक हो सकता है जब तक मैं जीवित हूं। उस मृत शरीर में वो नहीं है जो मेरे में है अभी, तो इसका चांस भी तभी तक है जब तक मैं जीवित हूं। तो जब तक मैं जीवित हूं और ये एबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ मेरे में है कि मैं ये जान सकता हूं कि मैं जीवित हूं, कॉन्शियसली माइंडफुली आई कैन बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इनसाइड मी। इस एबिलिटी को जाने नहीं देना है। ऐसा ना हो कि पूरा जन्म निकल जाए और कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं किया हो। पूरे शरीर में जीवन के एहसास को महसूस कीजिए और 3 बार गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस छोड़िए। थोड़ा थोड़ा हाथों को पैरों को हिला लें, कंधा गर्दन थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर लें और हाथों को रगड़ के चेहरे पे लगा लें। देखिए बहुत छोटा था, नॉर्मली जो वीडियोस हैं वो 20 मिनट 40 मिनट के भी हैं, पर कोई फीडबैक देगा कैसा लगा? वॉज इट रियली वर यू एबल टू कनेक्ट? कहीं कुछ फीडबैक थोड़ा सा 2-3 लोग दे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एनीबॉडी हु कैन गिव अ फीडबैक टू मी? ये जी अपने आप के साथ है जी। हम आपके साथ, हमारे साथ तो थे, हाँ और किसी के साथ नहीं थे। That was very important. राइट मैं मेरी बॉडी के बाद कहीं गया ही नहीं 5 मिनट। राइट और Exactly me only. एग्जैक्टली और मेरे थॉट्स कहीं नहीं गए, इसका मुझे एक रिलीफ मिला। हाँ, राइट और कहीं नहीं। राइट एनीबॉडी हु कैन से जी तो इसी उलझन में रहा जी उटपटांग जो प्रश्न थे हाँ उनका एक पूछूंगा हाँ हाँ गर्दन का टेढ़ा जी और कुछ नहीं पाया। तो ये सब कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन थे भीतर, हाँ बाहर नहीं। बाहर नहीं थे, बस उत्तर इनके भीतर ही थे। पर इन चीज़ों को देखते देखते हुए कहीं मेरे थॉट प्रोसेस को मैंने देखा कि वो रुक गया। फॉर अ वाइल, फॉर एटलीस्ट फॉर अ वाइल मेरा थॉट प्रोसेस कहीं नहीं था, मेरे पास ही था। ये एक शॉर्ट मेडिटेशन था, समय का थोड़ा कमी है, इस वजह से मैं अपना 20 मिनट वाला मेडिटेशन नहीं करा पाया। पर वो जो दूसरा वीडियो था ध्यान वाला, और ऐसे बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो आप उसमें वीडियो में कर पाएंगे। और मेरे अलावा और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो हैं। पर जो मेडिटेशन नहीं कर पाते उनको मेरा एडवाइस ये है कि आप गाइडेड मेडिटेशन कीजिए, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी के हों, चाहे ब्रह्म कुमारीज के हों, चाहे सदगुरु के हों, चाहे मेरे हों, चाहे कोई भी और हो। आपके लोकल अगर कोई योगा ट्रेनर है उनका है तो उनसे करिए, पर गाइडेड मेडिटेशन से ही शुरुआत होगी। अपने आप करने बैठेंगे तो नहीं होगा। एंड थैंकफुली आज यूट्यूब के ज़माने में रहते हैं तो वीडियोज़ की कोई कमी नहीं, राइट। तो इसलिए मैंने वो आपको चैनल दिखाया, अनुराग मेहता, आप ढूंढेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो लिटरली सेवा के भावना से ही वो चैनल बनाया। वो जितने वीडियो हैं भाव ही सेवा का था कि यार खाली बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो चलो वीडियो बना के किसी के काम आ जाए, वो भावना से वो वीडियो बनाए। एंड आई होप आप लोग को काम आए। तो दैट इज़ वन। अब माइंडफुलनेस क्या है और वो कौन सी मेडिटेशन हम दिन भर कर सकते हैं और किसी को पता भी ना चले और रिजल्ट इससे भी बढ़िया आएंगे। तो हमने सांस पे ध्यान की बात की। जब तक जीवित है सांस लेंगे, काम कर रहे हैं, काम करते करते टाइप कर रहे हैं, काम करते करते सांस लिया, सांस ले रहे हैं, सांस जाती हुई अंदर जाती हुई बाहर आती हुई सांस को ध्यान से देख लें। तो ध्यान हो गया, ध्यान से देख लें। आप करके देखिए, अभी आप बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, एक सांस कॉन्शियसली अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। एक बार इसको करके देखिए, इसका बेनिफिट क्या होगा बाद में बताऊंगा। सांस ले रहे हैं, काम तो नहीं रुका, काम तो चल रहा है। आपने सांस लिया, वो तो वैसे भी ले रहे थे ना, कॉन्शियसली लिया, जागरूक होके आपने सांस लिया, सांस छोड़ दिया। अब काम कर रहे हैं, काम करते करते आपने ऐसे ही सोचा भैया मेरा राइट पैर है कि नहीं है, खुले तो नहीं गया, पैर हिलाना नहीं है, देखना नहीं है, वो फीलिंग
वो क्या फीलिंग है जो आपको बता रही है कि आपका राइट पैर है। पॉइंट ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में तो आ जाएंगे। मेरे दोनों कान एक तरफ तो नहीं आ गए, थोड़ा फनी रखे, हंसने में क्या प्रॉब्लम है ना। मेरे मुंह में दांत है कि नहीं है, लेफ्ट से राइट ऊपर के दांत और बाद में नीचे के दांत, मेरे मुंह में दांत है कि नहीं है। और अगर आप फ्री हैं, प्रॉपर मेडिटेशन करना है, उसके ऊपर तो सूक्ष्म मेडिटेशन का पूरा एक प्लेलिस्ट है। दांत गिनिए बैठ के, लेफ्ट से राइट, 1 2 3, मजा आ जाएगा आपको। इतना कौन बोलता है कि पूरा बॉडी में एक अलग मेडिटेशन होना चाहिए। वो सूक्ष्म मेडिटेशन में दांतों का मेडिटेशन है, कमर का, रीढ़ की हड्डी का मेडिटेशन है, हाथों का पैरों का मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन आप दिन में भी तो कर सकते हो, चलते फिरते काम कर रहे हैं, सोचते सोचते काम करते करते, ए भाई मेरे मुंह में दांत है कि नहीं, जरा देख लेता हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में आ गए ना, ये माइंडफुलनेस ही तो है ना, और क्या है। कौन बोला मेडिटेशन करने कहाँ बैठ गया तू भाई काम छोड़ के, सवाल ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं चला मैंने मेडिटेशन कर लिया। पर बेनिफिट क्या होगा बताता हूँ। बेनिफिट ये होगा कि 20 मिनट सुबह मेडिटेशन किया और बाकी दिन फ्री। फ्री कौन? माइंड। किस चीज़ के लिए? भागने के लिए। और वो भागेगा और वो भागता रहेगा। 20 मिनट का मेडिटेशन का बेनिफिट आपको 20 मिनट भी नहीं मिलने वाला है। बाकी पूरा दिन वही हाथी, वही घोड़ा, वही भैंस। अगले दिन सुबह फिर से बैठेंगे। दैट विल नॉट हेल्प यू। Maybe it will help you, but not too much. What you want is you want to break the pattern of the mind. और मैंने क्या बोला? When you are meditating, you are present in the present moment. You are right here. When you are being mindful, आपने what happened? You broke the pattern of the mind because you did it 10, 15, 20, 30 times. जब आपको याद आया, and how do you remember? आपकी मोबाइल का नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, 1 सेकंड 2 सेकंड बाद उठा सकते हैं ना। उठाने से पहले आँख भी बंद करने की जरूरत नहीं है। जनरली स्पीक, सांस लिया, सांस छोड़ा, उसके बाद उठा लिया। कौन सा कोई मेरा एंटीलिया बनने से रुक जाएगा अगर 2 सेकंड बाद उठाऊंगा तो दिन में 25 बार तो नोटिफिकेशन आता होगा व्हाट्सएप और लेट्स से फेसबुक का या कोई दूसरा इंस्टा का। जब वो नोटिफिकेशन बजा, एक हैबिट बनानी है कि उस वक्त सांस ध्यान से लिया, दांत गिन लिए, खाना खा रहे हैं। माइंडफुलनेस ईटिंग के ऊपर मैंने एक वेबिनार किया था लॉकडाउन के दिनों में। आप खाना खा रहे हैं, सोचिए, मैंने उसमें डेमो भी किया था चावल के साथ। आप ये खाना खा रहे हैं, आपने तोड़ा, बाइट तोड़ा, तो उसका वार्मथ, उसका टेक्सचर, आपने सब्जी ली, देखा कलर, फ्लेवर आ रहा है, मुंह में गया, फ्लेवर को फील किया, चबाया, फील किया, साथ में दाल लिया, जो भी लिया, और अंदर एक ही निवाला, माइंडफुली मेडिटेशन हो गया। एक ही निवाला माइंडफुली पूरा भोजन कर सको तो उससे बढ़िया कोई नहीं। मैंने उस वेबिनार में बोला है, अगर पूरा भोजन हर रोज माइंडफुली करें तो पहली बात ये होगी, बिंज ईटिंग खत्म हो जाएगा। मेरा बॉडी मुझे बोल देगी पेट भर गया और नहीं चाहिए, स्टॉप इट। माई बॉडी विल टेल मी स्टॉप इट, आई डोंट वांट इट एनी मोर देन व्हाट यू आर सेंडिंग इनसाइड। बाद में पचेगा नहीं और तू मेरे को परेशान करेगा फिर डाइटिंग करके। तू रुक जा यहीं पे, इनफ है, राइट। द बॉडी विल गिव यू अ मैसेज, यू आर थ्रू, स्टॉप, राइट। माइंडफुलनेस ईटिंग, माइंडफुलनेस ड्रिंकिंग, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसको फील करके, पूरा नहीं, एक सिप। दैट व्हाट यू डू इज यू डू माइंडफुली, एंड दैट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। व्हाट इज हैपनिंग? माइंड टेक ऑफ करने जा रहा है, आपने जगह 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 स्पीड ब्रेकर लगा दिए, उसको मौका ही नहीं मिल रहा टेक ऑफ करने का, क्योंकि उसको मिनिमम स्पीड चाहिए उसके लिए। वो कहीं जाए उससे पहले कोई नोटिफिकेशन आ गया, नो रुक, अभी जा, फिर आगे भाग, रुक इधर। आपने माइंड को जब मौका ही नहीं दिया, वो बोलते हैं ना 21 दिन में हैबिट बन जाती है। आप थोड़ा दिन करके देखिए, आप देखेंगे माइंड का पैटर्न टूट जाएगा। माइंड से जीत नहीं सकते। भगवान का बनाया हुआ सबसे सुंदर मशीन है वो, सबसे एफिशिएंट। माइंड से बढ़िया कोई चीज नहीं है। मन से हम लड़ रहे हैं बेकार में, मन से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। मन से लड़ना बंद कीजिए, मन आपके लिए काम करेगा। उससे लड़िए मत, उसको रोकिए, रुक जा, लड़ थोड़ी रहा हूं, तू कर तेरा काम, मैं जरा कॉन्शियसली सांस ले रहा हूं। उतने में उसका पैटर्न टूटता रहेगा। और कहीं ना कहीं कंट्रोल एक गलत वर्ड है, पर वो आपके कंट्रोल में आना शुरू होगा। कंट्रोल बहुत गलत वर्ड है। कंट्रोल चाहिए ईगो को, मन पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। पर आपने ये कर दिया, यू आर होम, राइट। सो ये मेरा सजेशन है कि दिन भर में ये प्रैक्टिस बनाइए।
आप सुबह करें तो ज़रूर करें 20 मिनट मेडिटेशन, अदरवाइज यू एटलीस्ट डू दिस, जस्ट कॉन्शियस ब्रीदिंग। कुछ कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं तो पैर जमीन पे टच हो रहे हैं, उसको देखें, नहा रहे हैं तो पानी टच हो रहा है, वॉट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू फील इट, try to feel it to the full. Forget this, if you can't do this, forget this, although I'll say spend 10 to 20 minutes. There are so many workplace meditation videos also over here on my channel, and there are so many outside also my channel. You try to use them, that is okay. And मेरे जो channels है उसमें variety इसलिए है क्योंकि एक ही वीडियो से फिर बोरियत हो जाती है, तो इसलिए अलग अलग वीडियोस हैं, so you can do that, otherwise that is also okay. Right, now quickly last 2 slides. फर्स्ट इज क्लिनिकल एंड ऑक्यूपेशनल रिसर्च ऑन मेडिटेशन, जो रिसर्च हुई है, ग्लोबल रिसर्च हुई है, ये मेरा रिसर्च नहीं है, ग्लोबल रिसर्च है। सो वर्क प्लेस में पहला है इनहांस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, तो मैं भी देख रहा हूँ, रिड्यूस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ये रिसर्च है, पूरा रिसर्च है। इनहांस क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव माइंडसेट, हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स कोवर्कर्स, increased empathy and reduced conflict, so reduced conflict basically, decision making and leadership skills, better negotiation skills and reduced absenteeism and attrition. ये जो है जो लास्ट सेकेंड लास्ट है नेगोशिएशन स्किल्स, ये ग्लोबली कई नेगोशिएटर्स, जो बड़े नेगोशिएटर्स आर्बिट्रेटर्स होते हैं, उन्होंने ये चीज़ को कंफर्म किया है कि कभी भी हम नेगोशिएशन में जाते हैं उससे पहले हम 10 मिनट या 5 मिनट मेडिटेशन करके जाते हैं, हमारा नेगोशिएशन में दिमाग कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बिकॉज हम इमोशनली स्टेबल होते हैं और हम किसी भावना से बहकर गलत डिसीजन या गलत तरीके से नेगोशिएट नहीं करते हैं, ढंग से नेगोशिएट करते हैं, अपने मन को किसी न किसी लेवल पर स्थिर करके हम नेगोशिएशन करने जाते हैं। स्टीव जॉब्स का ये बड़ा पॉपुलर फैक्ट था दैट व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम एंड गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज, जस्ट बिफोर दैट ही वुड डू मेडिटेशन। एंड आई डोंट नो इफ मोस्ट ऑफ यू वुड नो, probably Steve Jobs was a great presenter. He was a presenter beyond anybody. His presentations were so simple and so effective, and he used to do meditations before his presentations. So ये हुआ, और लास्ट है इंक्रीज क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड से डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। ये क्लिनिकल रिसर्च है, क्लिनिकल बोल रही है, मैं जल्दी करता हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कम हुआ है, ये तो मेरे भी कई सारे लोग शायद यहाँ पे होंगे जो बोल सकेंगे, बट अदरवाइज भी ये फैक्ट है। आई हैव सीन दैट। मेरा एक स्टूडेंट, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू कम बट ही इज नॉट कम, आई गेस। उसकी मॉम का डायबिटीज़ 450 से 100 से 200 के बीच में आ गया आफ्टर 1 month ऑफ माई रेगुलर मेडिटेशन एंड भगवद गीता लेक्चर्स। तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता है, मेडिटेशन 450 से 150 कर दे, इतना भी भरोसा नहीं है मुझे मेडिटेशन पे। तो ये सेड नहीं, और कुछ नहीं है, उनका मेडिटेशन करने से एंग्जाइटी थोड़ा कम हुआ, स्ट्रेस कम हुआ। उसके बाद उन्होंने वॉक करना शुरू किया, दवाइयाँ लेनी शुरू करी, थोड़े खुश रहना शुरू किया, उससे कम हुआ। मैंने कहा ये ठीक है, दिस इज़ ओके, बट डायबिटीज़ कम हुआ। बाकी बोले सब कुछ सेम था, महीनों से सेम था, दवाई नहीं ले रहे थे, वॉक नहीं कर रहे थे। आफ्टर दिस शी स्टार्टेड डूइंग दिस एंड द डायबिटीज़ ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन, राइट। मेरा कहीं एक जगह बात चल रहा है राजकोट में, अगर हो पाए तो आई होप, रियली होप, मैं कैंसर के फर्स्ट स्टेज पेशेंट्स के ऊपर भी रिसर्च करना चाहता हूँ। मेरे को संभव लगता है फर्स्ट स्टेज में अगर पेशेंट मेडिटेशन कर लेता है तो वो बिना केमोथेरेपी ठीक हो जाएगा। दिस इज़ माई वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ। रिसर्च करना चाहता हूँ, इनफैक्ट आप में से कोई हो जो ये रिसर्च एनेबल करा सके, I'll be very happy to do this research. At least 1 or 2 months of daily meditation on cancer patients. If it can cure cancer without chemotherapy in the first stage of cancer, it will be a big help that meditation will be able to do to the society, right? So that is there. After that, insomnia, जो लॉकडाउन के दिनों में सबको नींद नहीं आती थी, टाइम का कोई होश नहीं था, तो इंसोमनिया बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मेडिटेशन के बाद आपकी नींद हमारी ठीक हो गई है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन डायबिटीज़ विच आई जस्ट सेड, पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स फॉर कैंसर पेशेंट्स। ये रिपोर्ट तो है ही इसके ऊपर, पर रिपोर्ट में डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला है समहाउ। आई वांट अ रिपोर्ट विच इज डायरेक्टली सेइंग कि द बेनिफिट वाज देयर बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, वो अभी पेंडिंग है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम ऑफ कोर्स बहुत सारा बेनिफिट है उसके अंदर, मेटाबॉलिज्म, लोअर बीपी, इम्प्रूव्स हार्ट रेट, breathing and brain waves, etc. And lastly, physical changes in brain areas. Literally, there is a physical change in the brain after meditation. There is a research, a lot of research which says that कि various parts of the brain में physical changes हुए हैं because of meditation. Now this is a miracle, right? And ये basic meditation है। मैं ऐसा मानता हूँ, एक बार आपने मेडिटेशन किया वो ठीक है, पर आप बार बार मेडिटेशन करें, यानी दिन भर करें। अब देखिए नमाज का कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, अनफॉर्चुनेटली जैसे हम लोग भूल गए हैं कई चीज़ों को, वो लोग भी भूल गए हैं। नमाज इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस। 5 days in a day, 5 times in a day,
राइट। मैं बोल रहा हूँ बार बार करो, नोटिफिकेशन आए तब करो। नमाज क्या है? 5 बार का यही तो है ना, 5 बार रुक जाओ, रुक जाओ, रूटीन में से भागते भागते रुको, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी उनका रहता है, आंखें आधी बंद, आंखें खुली करके इतने एरिया में देखना है और कहीं नहीं देखना है और कुछ नहीं करना है। कोई उनका मंत्र उच्चारण नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ जितना भी देर का नमाज होता है उतनी देर रुक के करना है। अनफॉर्चुनेटली वो कहीं और ही चली गई ये सब चीज़ें, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, राइट। तो वो है, तो उस तरह से ये जो चीज़ें हैं बहुत सुंदर हैं और बनाई गई हैं कुछ रीज़न से। मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेडिटेशन हो या ना हो, ये ज़रूर करें। प्रेजेंट मोमेंट में एंकर होने से क्या होगा, सबसे सुंदर चीज़, एंड आई विल फिनिश आफ्टर दिस, इज इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स क्या है? इंस्टिंक्ट्स, गट फीलिंग, अंदर की आवाज़, उस ईश्वर की आवाज़ है जो मुझे डायबिटीज़ में बोल रही है मीठा मत खा, जो एक स्टूडेंट को या किसी को बोल रही है तंबाकू मत खा, उसको मुकेश याद आता है, थिएटर वाला, वो वाला, है ना। और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं करता हूँ, ये करने का मन कर रहा है, लॉजिक नहीं है पर मेरे को समहाउ लग रहा है ये प्रोजेक्ट मैं ले लेता हूँ, मज़ा आएगा। ये प्रोजेक्ट नहीं लेना है, समहाउ कुछ गलत लग रहा है। अब ये लॉजिक के परे की चीज़ है। इंस्टिंक्ट्स है क्या? इंस्टिंक्ट्स ईश्वर की आवाज़। जिसने मुझे बनाया उसने बना के ऐसे फेंक नहीं दिया, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, 70 साल बाद मिलेंगे, फ़ोन नहीं करना। हाँ बस 3 मिनट 4 मिनट, मैं बोला ही लास्ट में, हाँ हाँ 3 मिनट। तो ऐसा नहीं उसने छोड़ दिया, उसने मेरे साथ एक वायरलेस वाईफाई कनेक्शन जिंदा रखा, एक्टिव रखा, जो मेरे को अंदर से हमेशा गाइड कर रहा है। पर वो गाइडेंस कब आएगी? प्रेजेंट मोमेंट में आएगी, पास्ट में नहीं आएगी, फ्यूचर में नहीं आएगी। तो बस आके चली गई बस स्टॉप पे, पर मैं बस स्टॉप पे ही नहीं था क्योंकि मैं कहीं और ही घूम रहा था। तो मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूँगा तो मेरे माइंड को इंस्टिंक्टिव गाइडेंस भी मिलेगी, विच विल हेल्प मी अ लॉट इन माई एंडेवर्स, राइट। सो दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ इट मेरे ख्याल से। हाँ बस यही है, वर्क प्लेस मॉन्क, कर्मयोगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाइए, मेरी भी रिसर्च है और भी बहुत रिसर्च है, इट सेज दैट यू शुड इंक्लूड मेडिटेशन। ओवर टू यू दीपक जी, थैंक यू। हेलो, किसी को क्वेश्चन आंसर है तो? बहुत मज़ा आया। थैंक यू। मुझे लगता है हम आए, कुछ किया, इससे किसी को स्ट्रेस नहीं हुआ। हाँ पीपल वेर रिलैक्स्ड। राइट। सो मैं जो कहता हूँ कि कुछ करने से टेंशन नहीं आता, स्ट्रेस नहीं आता है, जी। अपना काम करने से तो आनंद आता है। जी। यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस। यस। बट कई बार पास्ट में ये हुआ और फ्यूचर में ये होने वाला है, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा। करेक्ट। ये जो है वही स्ट्रेस क्रिएट करता है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कुछ डिटेल में बताएंगे? देखिए इसमें कैसा होगा कि स्ट्रेस जो है, जैसे मैंने बोला कि मेरा लैपटॉप गुम हो गया तो क्या होगा, मेरी ट्रेन मिस हो गई तो क्या होगा, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, यू नो। हाँ होता ही नहीं, 50 नहीं, 99.9, इसमें रिसर्च है। 99.9% फियर्स आर अनफाउंडेड। द फैक्ट इज ये सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं, अननेसेसरी। व्हाट आई डू, मैं जितना इनसे दूर रहूँ उतना अच्छा, और कोई सोल्यूशन नहीं है इनका। मैं बोलूँ ऐसा मत सोचो, अरे आ जाता है थॉट मेरा। अब गीता में क्या लिखा है कि आत्मा अपनी वृत्ति को हर जन्म में लेके चलती है, और मेरे को जो प्रारब्ध कर्म इस जन्म में क्लियर करने हैं उसके हिसाब से मेरी नेचर, उस हिसाब से मेरा चाइल्डहुड कंडीशनिंग, मेरी फैमिली मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट। अब उसी हिसाब से मेरी नेचर है। पर अगर मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मैं पास्ट और फ्यूचर से बाहर रहूँ, तो शायद यही जन्म है जिसके अंदर मेरी ये शुरुआत होगी कि मैं उस रास्ते जाना शुरू करूँगा जिसको मोक्ष बोलते हैं। पर मोक्ष ओवर यूज वर्ड है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मोक्ष किसी को नहीं समझ में आता है। मोक्ष अभी मिल जाएगा, आप इच्छाओं से मुक्त हो जाइए, वही मोक्ष है। मरने के बाद नहीं मिलेगा मोक्ष, अभी ही मिलेगा। तो ये जो फैक्ट है जो आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जिसे जैनिज्म में बोलते हैं इच्छा ही दुख का कारण है। वो जो इच्छा है उसी वजह से पास्ट और फ्यूचर में थॉट्स आते हैं। उनको निकालना है, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। क्या करेंगे, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट तो अभी का मोमेंट है ना, ये पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जितना रह पाएंगे हम लोग उतना ही इनसे दूर रह पाएंगे, और वहीं कहीं एक शुरुआत होगी एक डिफरेंस लेके आने की अपने ही लाइफ में, और ऑफ कोर्स बाद में दूसरों की लाइफ में भी। ये मेरा आंसर है।
नहीं, सोचेंगे तो सही है आप, सोचना तो देखिए, थॉट मेरे बस में नहीं है, वो आएगा ही आएगा। मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं दूंगा कि मेडिटेशन करने से थॉट रुक जाएंगे। थॉट रुक गए तो आप ब्रेक लगाना भूल जाएंगे सड़क पे। थॉट नहीं रुकने चाहिए भाई, थॉट तो चलते रहने चाहिए। द थिंग इज, आपको प्रेजेंट मोमेंट में जितना रहे, जितना समय बढ़ा सकें। तो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे को प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहना है। उसमें उन थॉट से मैं दूर, यही एक रास्ता है। दैट इज द ओनली वे आउट। आई हैव टू लिव इन द नाउ। वो एकार्ट टोले की बुक अगर किसी ने पढ़ी हो, पावर ऑफ नाउ, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। अदरवाइज भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि अगर किसी को भगवत गीता में इंटरेस्ट है पर मज़ा नहीं आता पढ़ के, तो मेरे 18-19 वीडियोज़ हैं। संस्कृत मुझे आती नहीं है और ना ही संस्कृत का एक भी शब्द यूज़ किया है। इसी रूटीन भाषा में एक सेशन किया था 18-19 दिन का, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है। आप पहला अध्याय देखेंगे। अब मेरे पास तो अभी समय ही नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि अर्जुन के बारे में जो धारणाएं हैं वो कितनी गलत हैं, उनको थोड़ा अलग से देखना ज़रूरी है, तो उसमें गीता समझ में आएगी। और उसी तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आपको लाइफ में आंसर चाहिए तो कहीं गीता आपको देखिएगा, वो वीडियो देखिएगा। हाँ जी सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड? सर, ये तो साइकोलॉजी में चले जाएंगे। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, 3 है। सिंपल बताता हूँ। अगर लेट्स से मेरे पेरेंट ने मुझे बचपन में कोई एक चीज़ के लिए एम्बैरेस कर दिया, समझिए कि तू बहुत खाता है, हाँ हर वक्त खाता रहता है, इतना खाता है, शायद इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे, शायद इसलिए कि हर बार खाना ओवर ज़्यादा हो जाता था, शायद मुझे लगता था। मैंने उसको 2-4 बार बहुत ज़्यादा बोल दिया कि तू खाता है, और उसको एम्बैरेसमेंट हो गई। शायद 4 लोग के सामने बोल दिया, उसको एम्बैरेसमेंट हो गई। अब ये दुख उसके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं समंदर में नीचे जाके उसके बैठ जाएगा और वो खाने की आदत छोड़ देगा। कहीं वो ओवर खाने वाला छोड़िए, नॉर्मल भी खाने की आदत छूट जाएगी। कोई उसको पूछे खाता क्यों है, कम क्यों खाता है, पता नहीं, मन नहीं करता, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में गया तो उसको पता भी नहीं चला। ये गया अनकॉन्शियस में, ये उसके पूरे जीवन में रहता है। कहीं ना कहीं उसको मेमोरी याद नहीं रहेगी, इफेक्ट याद रहेगा, उसकी वजह से उसका कॉन्शियस बिहेवियर होगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड ये है कि आपको अभी कुछ बोला और उसकी वजह से सबकॉन्शियसली, यानी आपको मेमोरी याद है, आपको थॉट प्रोसेस याद है, और आपको पता है कि ऐसा बिहेवियर मैं नहीं करूंगा। शायद वो ईगो पे आ गया, मेरे को ऐसा बोल दिया, अब मैं नहीं करूंगा वो, तो वो सबकॉन्शियसली वो चीज़ ऐसी हो गई कि वो मेरे दायरे में है पर मेरे कॉन्शियस बिहेवियर में नहीं है। मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, पर मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा मुझे दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा तो मेरे को लगेगा हाँ यार एक्चुअली, हाँ यार मेरे को नहीं अच्छा लगता है, क्या जाना यार वो कैसे बात करते हैं यार, पर मेरे को वो याद दिलाना पड़ेगा। वो सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड इज कॉन्शियस, जागृत अवस्था, एंड कॉन्शियसनेस अलग चीज़ है। कॉन्शियसनेस है चेतना भाव, जो हमने अभी किया। माइंडफुलनेस इज कॉन्शियसनेस, आई एम कॉन्शियस, आई एम अलाइव राइट नाउ, दैट इज व्हाट इट इज। हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो। बैठिए। डे ड्रीमिंग में भी हम ये इमेजिनेशन करते हैं जी, और माइंडफुलनेस में भी हम इमेजिनेशन करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए डे ड्रीमिंग में ना कन्विक्शन नहीं आती। मुझे पता है कि मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ। मैं कोई भी डे ड्रीमिंग में मैंने अपना एंटीलिया बना लिया, मुझे पता है मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। डे ड्रीमिंग में मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ मोस्टली, या अगर नेगेटिव भी सोचता हूँ मुझे पता है मैं गलत सोच रहा हूँ। समहाउ आई नो आई एम रॉन्ग। कॉन्शियसनेस जो आप बोल रहे हैं उसमें मैं लाइट डाला हूँ, मुझे दिख रहा है, मेरा इमोशन मुझे दिख रहा है, मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरा पर्सनालिटी, मेरा कैरेक्टर मुझे दिख रहा है, जो मैं बिना देखे चल रहा था बिकॉज सोसाइटी ने ऐसे कंडीशन किया था, लेकिन अब मुझे वो चीज़ दिख रही है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड डे ड्रीमिंग। सो आई थिंक ठीक है, चलिए उनको बुला रहे हुए बैठ जाते हैं। थैंक यू। समय किसी का रुका नहीं है तो हमारा जो क्लोजिंग टाइम है 7:45 आवर क्लोजिंग मीटिंग। जी जी। तो पहले तो हम अनुराग जी को फॉर गिविंग दिस वंडरफुल सेशन फॉर माइंडफुलनेस इंटरवेंशन एट द वर्क प्लेस। वो खुद एक कर्मयोगी है और कर्मयोगी की साधना के साथ साथ अपने को भी ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस करवाया कि आप अपने घर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर भी आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रह के, कंटिन्यूस अवेयरनेस रह के ये माइंडफुलनेस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा एक चीज ऐड करना चाहता हूँ प्लीज। कि हमारा जो शरीर है वो स्थूल शरीर है, लेकिन मन क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आप देख सकते नहीं लेकिन है। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द माइंड बट इट इज़ देयर। लेकिन वो माइंड को आपको एक्सपीरियंस करवाना जो चीज़ है वो अपने अनुराग जी ने बताया। जो हमारे शरीर के अंदर है हमको मालूम नहीं, लेकिन उसने अनुभव करवाया। तो सब लोगों को ये मालूम होगा कि मन है बोलते हैं, लेकिन मन कहाँ है? यू कैन नॉट सी इट मन। किसी ने देखा है मन को तो मेरे को बताइए, अनुराग जी पीएचडी और करेंगे। नहीं, हाँ कर लेंगे, कोई रास्ता निकलेगा तो। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। दूसरी चीज आई जो मेडिटेशन का, बुद्धि का। तो बुद्धि है वो डिसीजन मेकर है। तो सत्य और असत्य मीन्स सच और असत्य का जो भी सच झूठ का बात है वो बुद्धि डिसीजन लेती है। मेडिटेशन से आपका विवेक जागरूक होता है। जो भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि विवेक बुद्धि जागरूक होती है, लेकिन विवेक बुद्धि के साथ साथ और एक एडिशन करना चाहता हूँ, उसमें हो सद्विवेक। सद्विवेक है जो आपको अपना आत्म कल्याण की तरफ आपको ले जाएगा, वो सद्विवेक है। कोई भी चीज़ का डिसीजन आप जब भी जहाँ भी लेते हैं, कोई भी समय के अंदर, कोई भी सिचुएशन के अंदर, तो आपका विवेक जग जाता है, भाई ये काला है या धोला है, ये बैग मारे है मेरा नहीं, ये पेन मेरी है, मेरे ने पैसा मेरा है नहीं है। तो आपको मालूम है कि मेरा नहीं है, लेकिन आपका विवेक क्या कहता है वो सबसे बड़ी बात है। और विवेक के साथ साथ आपका सद्विवेक जब ये ऐसा बोले कि मेरा आत्म कल्याण के लिए मैं ये सिचुएशन के मैं ये चीज़ करता हूँ, तो वो मेरे को ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो माइंडफुलनेस का जो उसने अपने को ये एक्सपीरियंस करवाया, वो आपको जरूर सद्विवेक की तरफ ले जाएगा। वो इतना मैं एडिशन फ्लेवर आपके साथ में जोड़ सकता हूँ। बिल्कुल सही, को मैं बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं घुसा नहीं इसके अंदर। नहीं, आप बोल लेकिन रहे हैं मेरे को बिल्कुल ऐसा सच में। लगा कि आप जो एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, क्योंकि सबको ये चीज़ चाहता है ना माइंड का, मेडिटेशन का, तो ये सब लोग इसमें नहीं आते हैं। 100 में से 10% 20% ही लोग ऐसे होते हैं कि वो मेडिटेशन क्या है हम इसलिए। लेकिन आपने अपना समय दिया, अपना काम छोड़ के आए, आपका घर का काम छोड़ के आए, बिजनेस काम छोड़ के, लेकिन मेडिटेशन चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। आगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होगी, आप बड़े होंगे, जब भी आपको ज्ञान होगा कि भाई मैंने इतना करोड़ रुपया कमाया, इतना लाख रुपया कमाया, मैंने ये कमाया, लेकिन मेरे लिए मैंने क्या किया। तो जब भी वो चीज़ आप अपना विवेक से देखेंगे, तभी आपका आगे की जर्नी आगे बढ़ेगी। और वो आगे की जर्नी आपको इतना आगे तक ले जाएगा कि आपका पीसफुल लाइफ रहेगा। इससे करके मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू द अनुराग जी। बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर द वंडरफुल टॉपिक्स ये सिलेक्टेड। क्योंकि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे ज़्यादा तो पैसा कितना लेना, कितना देना, कहाँ एक्सपोर्ट करना, कहाँ मैनेजमेंट करना, कहाँ एचआर करना, लेकिन अपने घर की बात, अपने खुद की बात, अपने दिल की बात हम सोचते नहीं है। वो एक आशा की किरण हम सबके अंदर लाया है। तो मेरे को लगता है इट इज़ अ वंडरफुल टॉपिक, मेरे को बहुत पसंद आया। धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच। मैं एक छोटा सा चीज़ पूछना चाहता हूँ, अपने वर्क प्लेस मॉक ग्रुप में से कितने लोग हैं यहाँ पे? एनीबडी कैन रेज देयर हैंड्स। तुम लोग बाद में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू।